Hello everyone, coming back to the lesson energy, we are doing numericals and half portion of numerical part is already over in our previous video. And today, my dear students, we will start further. Numerical number 7. Now, whenever you are doing any numericals, so remember it 3 points and keep it in mind. First part, whenever you are doing numericals, first part is given. You have to write what is given in the question. Okay, second is to find, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, and third is formula used and the solution of the given question. Okay, these three things keep it in mind when you are doing numericals. So write it first, given. आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? The potential energy of a body of mass 0.5 kg of mass means mass is given to you, that is 0.5 kg. Increases by 100 joule, that is potential energy is also given to you 100 joule. When it is taken to the top of the tower from ground, top of the tower से आपने ground तक का लिया, then potential energy is 100 joule and the mass is 0.5 kg. If the force of gravity on 1 kg mass, अगर 1 kg mass पे force of gravity, that is acceleration due to gravity, that is g, is given to you 10 Newton. So you have to find the height. The next part is to find. आपको निकालना क्या है? Height of tower. Height of the tower. Okay. Now solution means अब इसमें whatever the formula you used, that formula you have to write it first. Okay. Now potential energy is given to you, so write down potential energy formula. That is potential energy is mgh. Now what is potential energy here? It is 100 joule. Okay, now m is mass, that is 0.5 into acceleration due to gravity, that is 10, and height you have to find it. तो इसलिए हमने height की जगह पर h रख दिया. h की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों की टर्म आपके 100 के यहाँ चले जाएंगे. That is 100 upon 0.5 into 10 equal to h. अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो और ऐड हो जाएगा. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल. That is 5 2 10 और 0. That is आपके पास height क्या आ गया? 20 meter. Okay, now in this question you have to find the height of the tower. So the height of the tower is 20 meter. Coming up next, question number 8. In question number 8, what is given to you? A body of mass 60 kg is moving with the speed of 50 meter per second. Means एक body है जिसका mass आपको 60 kg दिया है. That is given. What is given to you? A body having mass 60 kg. तो मास इक्वल टू 60 kg with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है. That is speed is denoted by v. That is 50 मीटर पर second. And you have to find the kinetic energy. So to find is kinetic energy. Kinetic energy. Okay. Now next is solution. So kinetic energy. What is the formula of kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv square. So put the values of mass and velocity in this formula. That is half into mass is 60 into velocity is 50 square. That is 1 by 2 multiplied by 60 into 50 into 50. Now 2 3 ja 6 0. That is 30 into 50 into 50. Now 3 5s are 15. Okay. Now 15 5s are 75 000. Now kinetic energy. You know that what is the unit of kinetic energy? The kinetic energy is, the unit of kinetic energy is joule. So kinetic energy equal to 75,000 joule. Or you can say that 7.5 into 10 to the power. देखो कितना डिजिट है? 1 2 3 4. इसको अगर हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है. दैट इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 क्यों आया? पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4. 4 डिजिट्स आर देयर, इसलिए 10 टू द पावर 4. और जूल इसलिए आया बिकॉज द यूनिट ऑफ काइनेटिक इज जूल. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल. Question number 9. A truck of mass is 1000 kg increases the speed from 36 to 72 km per hour. एक ट्रक है, लोडिंग ट्रक जा रहा है. लोडिंग ट्रक में मास जो दे रखा है वो है 1000 kg. So what is given to you in this question number 9? That is given is mass
mass is 1000 kg. इट्स इंक्रीज ट्रक की स्पीड जो है पहले 36 किलोमीटर पर आवर थी, उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो 36 से 72 किलोमीटर तक होगी. ओके, नाउ स्पीड जो आपको दे रखी है, तो इनिशियल स्पीड आप उसको कुछ भी मान सकते हैं. जैसे मैंने V1 कंसिडर करा, तो इनिशियली उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर और बाद में इसकी स्पीड जो है वो और तेज हो गई, बढ़ गई, दैट इज V2. अब बाद में उसकी 72 किलोमीटर पर आवर हो गई. ओके, नाउ किलोग्राम दैट इज केजी. केजी के साथ स्पीड जो होती है वो मीटर पर सेकंड में वेरी करती है. सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट टू डू, यू नो, 36 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे. 18 2 जा 36, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. ऐसे करके 72 इंटू 5/18, सो 18 का टेबल आपको अच्छे से पता होगा तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं 18 से. अगर आपको टेबल नहीं भी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, बिकॉज 2 का टेबल आपको अच्छे से पता होगा. 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 9 4 जा. ओके, नाउ 4 5 जा कितना होता है आपका 20 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में कितना बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पहले 36 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी और फिर बाद में और तेजी से बढ़ी 72 किलोमीटर. तो कितना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, दैट यू हैव टू फाइंड. नाउ क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की बात करी गई है, तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv². तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्पीड के बारे में बात करी गई थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल वाली माइनस इनिशियल वाली, दैट इज हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर. हाफ m इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, सो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, दैट इज हाफ इनटू व्हाट इज मास 1000 v2 का स्क्वायर, व्हाट इज v2 हियर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. गॉट इट. ये 2 से कट जाएगा, 2 5 से 10 00, दैट इज 500. 20 का स्क्वायर इज 400, 10 का स्क्वायर इज 100. सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 300, दैट इज 5 3 जा 50, 1 2 3 4 जूल. ओके, काइनेटिक एनर्जी है. सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 1,50,000. और यू कैन से दैट अगर आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 जूल. क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, A car is moving with a speed of 15 किलोमीटर पर आवर. एक कार जो है कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, 15 किलोमीटर पर आवर. और ऐसे करके दूसरी कार जो है आइडेंटिकल कार, वो भी 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है. आपके पास में एक ट्रैक है, एक तरफ एक कार आपकी आगे बढ़ रही है, ये वाली कार आगे बढ़ रही है, कितनी की स्पीड से बढ़ रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही है. और जो दूसरी वाली कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है. सो कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी और इसकी, इन दोनों कारों की काइनेटिक एनर्जी को आपस में कंपेयर करना है. गॉट इट. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार है उसकी स्पीड, जैसे एक कार जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, दैट इज स्पीड v कितना है इसका 15 किलोमीटर पर आवर. और जो b कार है उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ टू कंपेयर, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को. सो कंपेयर करना है काइनेटिक एनर्जी को. नाउ सोल्यूशन. सो काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv². आपको दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार B, दैट इज हाफ mva का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mvb का स्क्वायर. हाफ m दोनों का कट जाएगा, दैट इज va का स्क्वायर डिवाइडेड बाय vb का स्क्वायर. दैट इज v मतलब वेलोसिटी जो है आपकी वो a की, तो कितना था आपका 15 का स्क्वायर और दूसरा क्या था 30 का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर.
So 15 का स्क्वायर that is 15 into 15 और 30 का स्क्वायर 30 into 30. Now 15 2s are 30. ओके, दैट इज 1/4. तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को जब आप कंपेयर करेंगे तो उसका आपका रेशियो आ जाएगा, दैट इज 1:4. थैंक यू.